جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں لاہور سے عتیق ملک۔ ناظرین، عید قربا میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر کے مختلف پوائنٹس پر 12 مویشی منڈیاں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں اور ہر مویشی منڈی میں ہر طرح کے خوبصورت جانور جو ہیں وہ فروخت کے حوالے سے یہاں لائے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو خریدار ہیں وہ مہنگائی کا رونا روتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر بات کر لی جائے بیپار کی، تو بیپار جو دوسرے اضلاع سے یا دوسرے شہروں سے یہاں پر اپنے جانور فروخت کرنے کے حوالے سے لاہور آتے ہیں، ان کو بھی منڈیوں میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس وقت سگیا پل منڈی میں موجود ہیں، چلتے ہیں اور جا کر بیپار سے بھی بات کرتے ہیں اور شہروں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے مسائل جب ان کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایک بکرا منڈی میں اور یہاں پر فیملی جو ہے وہ کچھ خریداری کرنے کے لیے آئی ہیں، بکرے خریدنے کے لیے آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، بتائیے گا منڈی شنڈی وزٹ کر لیا آپ نے؟ منڈی تقریباً کچھ 1 بجے کا ہے، ود فیملی ہے، سارے بچے ہیں میرے، یہ میری مسز ہے، یہ میری والدہ ہے، تو سمجھ سے باہر ہے۔ جو 55,000 کا جانور ہے نا، وہ کہتے ہیں جی 1,05,000 ہی ہے۔ اب یہ ایزیلی ہونا چاہیے دمبا 30,000 تک، یہ 65,000 مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم یہ کھلاتے ہیں، ہم وہ کھلاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کھا پی کے بڑے، ہاں تو بالکل بڑے ہو گئے، سارا معاوضہ لگ گیا۔ اب گاؤں وغیرہ میں دیکھو تو ایسے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں تو دانا وغیرہ، یہ سارے جانوروں کو اگر دانا بھی کھلائے نا ڈیلی کا تو 1,000 یا 1,200 سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی ان کے جو رینٹ وغیرہ جو یہ پلاٹ میں آئے ہوئے ہیں، ان کے رینٹ وغیرہ ہیں، تو یہ ہمارے سے تو نہ نکالے ہیں یہ لوگ۔ نکال لیں تو گاہک سے گاہک سے ہی ہے، لیکن گاہک بھی تو سمجھ آئے نا، ڈبل نکال لیں۔ اچھا، نہیں ویسے کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس بار مہنگائی ہے؟ 55,000 میں لیا تھا نا، وہ اس ٹائم جانور جو ہے آپ کو نا بحث کر کے من تو 1 لاکھ سے کم نہیں، ڈبل مہنگائی ہوگی۔ ڈبل مہنگائی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ مہنگائی نے تو بیٹا بہت ترقی کر لی ہے، عمران خان نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، دنیا کو مار دیا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ بس دوائی لینی مشکل ہو گئی بیٹا۔ نہیں ایسی ہے، مہنگائی تو ہوگی، مہنگائی تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، اس نے بہت ہی مہنگائی کر ہر چیز۔ آج جاتے ہیں 10 روپے بڑھے، کل جاتے ہیں پھر 10 روپے بڑھ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن جاتے ہیں، ایسے پیسے بڑھ رہے ہیں، اتنی مہنگی چیزیں دے رہے ہیں کہ ہماری پہنچ سے دور ہو گئی۔ اچھا، کتنے جانور خریدنے کا ارادہ کر کے آئے تھے آپ؟ ہم تو بیٹا ایک ویڑا اور ایک یہ دمبا لینے آئے ہیں۔ اچھا، تو اب کیا ارادہ بدل گیا؟ ارادہ بدلا نہیں، انشاءاللہ لیں گے، آج لیں گے، کل لے لیں گے، پرسوں لے لیں گے۔ آنا پڑے گا، آنا تو لینا تو اللہ کے نام کا دینا ہے تو دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے تو ضرور دیتے، زندگی بھر دیتے رہیں گے۔ میڈم آپ بتائیں، آپ بھی منڈی وزٹ کر چکی ہیں، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو طوفان ہی نظر آتا ہے۔ جو پچھلے سال ہم نے 55-60 کا لیا تھا، وہ اس ٹائم 120 سے کم ہے ہی نہیں۔ نہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ارادہ، جو بجٹ آپ بنا کے آئے تھے اس بار لینے کے لیے، اس میں جو پورا آ رہا ہمارا ہے؟ بجٹ تھا وہ آؤٹ آف یہ کنٹرول ہے۔ ہم تو یعنی کہ سوچ کے کچھ ہو رہے تھے، ہم آئے تھے تقریباً 1,20,000 میں، 1,20,000 میں سارا کچھ آ جائے گا۔ یہاں پہ تو 1,20,000 کا تو وہ کہتے ہیں نام ہی لو، خالی ویڑا تو ہے ہی نہیں، 1.5 لاکھ تک ویڑے کا نام لو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ بیپاری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ ہم آگے پنڈی سے جی، کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں؟ ہم بس 2 دن ہو گئے ادھر سے آگے۔ گاہک آ رہا ہے، اپنی مرضی کے پیسے دے رہا ہے؟ گاہک بھی آتا ہے، وہ مرضی پر پیسہ نہیں دیتا ہے، کیوں؟ اس کا 500 روپये جگہ سے پکڑاتا ہے۔ اچھا، اور گاس اتنا مہنگا ہو گیا، بہت مہنگائی ہے، اور گاڑی کا بھی خرچہ زیادہ ہو گیا، اور اس کا نال آم کرنا کلاتا ہے، خوراکہ دیتا ہے، 1 سال پورا آم رکھتا ہے۔ 1 سال تھا پورا تو حساب کرو، روز پر 100 روپये کلاتا ہے، کتنا پیسہ بانٹتا ہے۔ اس کا مزدور بھی چراتا ہے، مزدور لیا کرنا ہے، اس کا خرچہ دیتا ہے، اپنا خرچہ کرو، یہ بہت خرچہ ہوتا ہے۔ گاہک کتنا ریٹ لگا رہے ہیں ایک بکرے کا؟ گاہک تو مانگتا ہے 50 بھی مانگتا ہے، 45 بھی مانگتا ہے، یہ میرا 60 پر 65 پر میرے ساتھ۔ آپ ایک بکرا جو ہے وہ 60 سے 65,000 کا بیچنا چاہتے ہیں؟ ہاں، 65 پر بک جائے گا، اچھا تو بکرا میرے ساتھ خود بڑا خرچہ لا گیا ہے۔ جو باڑا آپ نے لیا ہوا ہے، اس کا کتنا ٹھیکہ دیا؟ اس کا نال پی دمبئی سے 500 روپये دے دیا، ادھر سے سوتا بھی ہے، مال واسطے سے سوتا ہے، کوئی جگہ ہم نہیں جانا چاہے، کوئی مکان پر ہم جانا، ہم دمبے واسطے سے سوتا ہوتا ہے، جہاں دمبے سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سو جاتے ہیں؟ ہم دمبوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ سارے بیچ کے جائیں گے، امید ہے بک جائیں گے؟ ہاں، سے بیک جائے گا ہم بھی جائے گا، نہیں بیک جائے گا ہم پھر بھی مال واپس سے بھی لے کر جانا ہے، ہم وہ مال نہیں چھوڑتے، کیوں؟ ہمارا خرچہ بہت زیادہ اس کا نال ہو گیا ہے۔ یہاں پر کچھ اور بھی شہری ہیں جنہوں نے جانور اپنا خرید لیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جانور خریدنے کے حوالے سے کیا مشکلات رہی ہیں
और महंगाई के हवाले से भी बात करते हैं। कितने का लिया ये? ਲਾੜੀ ਝਗੜ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗਾ। अच्छा, कितने का माइंड बना के आए थे जी आपने? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ 16 18 19 20,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਿਆ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਦੇ ਵੀ 8-9 ਕੁੱਕੜ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਲਾ ਲਓ। अजय दोंदा लिया कि खीरा है? ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛੋ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ 45,000 ਰੁਪਇਆ, 50,000 ਰੁਪਇਆ, 55,000 ਰੁਪਇਆ, 60,000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਕਰੇ 'ਚ। नहीं, महंगाई तो हो गई है। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫੇਲ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਵੰਡਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਵੰਡਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਾੜ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਾਂਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਂਗਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨੇ हर चीज है, बल्कि ये चीजें सस्ती होनी चाहिए ने। यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बाड़ा तो यहाँ बना रही हैं, हाँ जी कौन कौन से मसाइल का सामना आप? सर, मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। जो हमारे साथ मसाइल पेश हुए हैं उसका तो हल ही कोई नहीं निकल रहा। क्या मसला हुआ? मसाइल ये हुआ है कि हम 6 तारीख को जानवर लेकर आए हैं और रात 9 बजे एक जानवर चोरी हो गया। हमने 7 तारीख को मुलजम पकड़ लिया, पकड़कर 15 पर कॉल की, और जब 15 पर कॉल की तो पुलिस मौके पर डॉल्फिन भी पहुंच गई और चौकी जारज सगियां पुल वाले भी पहुंच गए। जब वो पहुंचे हमने मुलजम उनको दे दिया, वो मुलजम थाने ले गए चौकी पर। जब चौकी पर गए तो उन लोगों ने कहा ये तुम्हारे चोर नहीं है। वो मिले हुए थे पुलिस वाले, उनके साथ वो इकट्ठा काम कर रहे थे, वो निकालते थे जानवर और वो पुलिस वाले वो रलकर मिलकर खाते थे। पुलिस वालों ने क्या किया कि इनसे कसम न्याय ले लो। हमने कहा चलो ठीक है। 2,25,000 रुपया चोरों ने जमा करा दिया चौकी इंचार्ज को। वो कौन से जमा करवाए? जो चौकी इंचार्ज है हामिद साहब और नईम मुर्रर और नदीम तारक, इन तीनों ने फैसला किया 2,25,000 रुपया उनके पास जमा करवा दिया। मैंने उनको 9 आदमी उनके मोहल्ले के देने थे कि ये तुम्हारी कसम दे दे, 9 में एक आदमी, अगर एक आदमी तुम्हारी कसम दे देगा तो तुम पाक साफ हो जाओगे। अगर 9 आदमी में एक भी कसम नहीं देगा, तुम चोर भी हो, ये पैसे भी हम लेगा और तुम्हारे साथ पर्चा भी होगा। पुलिस वाला ने कहा ये फैसला आपको ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। जब हम पहुंचे कसम लेने के लिए तो पुलिस वालों ने उन्हें चोरों को भी फरार कर दिया और जो रकम थी वो आप हड़प कर ली और मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए कि यहाँ चौकी से निकल जाओ। मैं कहा हम कहाँ जाए? अल्तजा तो अड्डे के की है कि मेहरबानी करो साडे ते कार्रवाई की जाए पुलिस वालों ते। ये जो साडा 2,25,000 रुपया चोरों को लैके आप हड़प कर गए ने, सानू नहीं दे रहे, को धमकियां दे रहे ने। हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ जो जानवर होते हैं जो बाड़े में लगे हुए होते हैं, वहाँ पर चोर जो है उठा के ले जाते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई असल कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती, जिसके बायस जो है वो जो व्यापार होते हैं वो काफी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। कुर्बानी का जानवर खरीदना जो है वो एक आम इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल वो हो रहा है, जिसके बायस शहरी जो है वो काफी गमो गुस्से में दिखाई देते हैं। ये नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी की बात है, उसी के साथ साथ खूबसूरत जानवर का जो उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए जो है उस पर सजावट भी की जाती है। और मंडियों के करीब जो है वो अक्सर लोग जो है सजावटी सामान लेकर जो है वो खड़े होते हैं। यहाँ करीबी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जानवरों की खूबसूरती के लिए, उनको सजावट करने के लिए बड़े खूबसूरत जो है वो चीजें जो है सजाई गई हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो जानवर पर लगाकर उनकी खूबसूरती को जो है मजीद बढ़ाया जाता है। जानवरों की खूबसूरती के लिए लगाई जी, खूबसूरती के लिए। क्या क्या है ये जरा बता देते? सर ये झांझरे हैं, छनछने उनके उसके गले में डालने वाला है। ये रस्सी बकरे की है, माला है। ये चेन लोग ईद नजदीक है इसलिए लगाए हुए। ये चेन तो वैसे आमतौर पे इंसान पहनते हैं, तो आप इधर इंसान भी तो फिर ही रहे हैं, मेहनत करके खाना है ना, जो ये खास तौर पर खा रहे हैं। बस बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको बस अल्लाह पाक नेक करे इंशाल्लाह। ये वैसे कितने दिन पहले आप आ जाते हैं मंडियों में ये सजावटी सामान लेने? आज हमें 15 दिन हो गए हैं, तो इंशाल्लाह चांद रात इधर ही गुजरेगी। तो
जैसे अल्लाह पाक की मर्जी है, जैसे उसको मंजूर है। लेकिन कितने वैसे लोगों का रुझान होता है यहाँ पर कुछ सजावटी सामान लेने के हवाले से? हाँ इंशाल्लाह बहुत ज्यादा माशाल्लाह, जो गाहक बकरा लेता है वो लेके जाता है कुछ ना कुछ। सस्ते हैं कि महंगे हैं, क्या है वैसे? बस अल्लाह पाक रोजी का बहाना बनाया हुआ है, जैसे समझ लो वैसे ही है, समझ रहे हो। अगर किसी को शौक हो तो उसके लिए मेरे ख्याल से महंगी सस्ती क्योंकि बात शौकीन आदमी हमसे लेता है, जिसको शौक नहीं है वो नजदीक नहीं आता, वो कहता है हम नहीं लेते यार, हमारे घर में बहुत पड़ी हुई है। हाँ जी ये बात है। लेकिन ये है कि जब आपका सामान बिकेगा तो आपकी रोजी पर हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हमारे बच्चे भी खाएंगे, हम लोगों को दुआएं देंगे, अल्लाह पाक खुश होगा लोगों पे भी हमारे पे भी। हम मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जहाँ पर शहरियों को जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से मसाइल है और जिस तरह व्यापारियों को भी मसाइल होते हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स हैं कुछ, उनका भी कुछ मसाइल है, उनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। क्या मसाइल है जी, क्या मसला है यहाँ पर? कि मैं जी पिकअप का ड्राइवर हूँ, तो पहले यहाँ पे पर्ची फ्री थी, एक रुपया भी चार्ज नहीं होता था, 500 रुपया डंगर का भी कोई चार्ज नहीं होता था। अब ये लोग 500 रुपया डंगर का ले रहे हैं। जब कोई बंदा यहाँ से जानवर खरीद के जाता है बाहर, तो वापसी जाते हुए यहाँ से पर्ची भी लेते जाते हैं? हुए पहले लेते थे ना 500 रुपया, कि वो वाला इन लोगों ने खत्म किया है। ठीक है, 2-3 दफा लड़ाई भी हुई है इनके साथ, इन्होंने खत्म किया है। वो आने का जो 500 अलाउ वो भी नहीं है। पिकअप की 24 घंटे की पर्ची थी पहले, एक 100 रुपए की थी, इन्होंने 150 रुपया हर फेरे का चार्ज कर रहे हैं। किस चीज का चार्ज कर रहे हैं ये लोग? ये सरासर जुल्म है अवाम के ऊपर, ये वाला खत्म होना चाहिए। अभी 6 दिन ईद को रह गए हैं, तो हर आदमी ना गरीब आदमी है, ये मजदे वाले हैं, इसका ये चार्ज कर रहे हैं 1000 रुपया, शाहदौर का ये कर रहे हैं 300 रुपया, हर फेरे का कर रहे हैं। ये लोग क्या है? इन्होंने ठेका लिया है, ये तो नहीं कि यानी कि गरीब आदमी के ऊपर जुल्म करे। ये क्यों हो रहा है? कोई पट्ठे नहीं है और ना इधर से लाने देते हैं। वो कहते हैं जी इधर से लेकर उनको लड़ाई है, जानवर भूखे मर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म। तो वो फिर जानवरों के खुराक और चारा कहाँ से? आप बेशक एंड पे चल जाए, विजिट कर लें, भूखे हैं जमीन पे, उनको वो बोतलें में पिला के जो पेट फुला देती है ना, वो चीज ये काम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। आप विजिट कर लें, किसी से पूछ लें, ये जो लेकर आए ना जानवर, उन्होंने ये खाड़े से बनाए हुए हैं, ये भी परेशान है कि अगर हम इधर से लेकर आते हैं तो हमें लड़ाई करते हैं और हमारे इधर से जानवर निकाल देते हैं। हाँ जी, हमने शेखपुरे के लिए लिए थे, 2 घंटे के लिए हमने उधर रखना था कि जी गाड़ी आनी है तो भूखे हैं, कोई ना पट्ठे है, उनके पास पीछे भी पट्ठे नहीं है, इधर से भी नहीं लाने देते, ये ज्यादती कर रहे हैं। तो जो अंदर लोगों ने कारोबार के हवाले से यहाँ पर जो चारा वगैरह रखा हुआ है, वहाँ से ठेका खत्म हो इनका गया? सर ठेका है, हाँ जी वो खत्म हो गया हुआ है। हाँ जी, इनका तो काम है ना रेंज करके रखें, अरेंजमेंट तो करके रखना चाहिए ना। बेजबान जानवर है और उनको वो बोतलें पिलाते हैं, उनके पेट ऐसे फूल जाते हैं जैसे वो बढ़ गए हैं। कितने पैसे चार्ज करते हैं एक चक्कर के? 300 रुपया सर, जाने का 300 रुपया आने का। जितने आप चक्कर लगाएंगे उतने बार आपको पैसे दे? तो कितने को इंसान देगा इतने? ऊपर से गैस का रेट है 170 रुपये हो चुका है, ऊपर से मंडी का जुल्म है, 2 घंटे लाइन में फंसना पड़ रहा है। ट्रैफिक भी बड़ी हो जाती है, इस वजह से होती है कि आपको ट्रैफिक में आए हुए 1.5 घंटा हो चुका है। यहाँ से आपको हाँ, ठीक है, आए हुए यहाँ तक हमें 1.5 घंटा हो चुका है। ट्रैफिक इतनी फंसी हुई है कि आपको यहाँ से गुजरने में टाइम लग रहा है। जी सर, तो हमें क्या करें, हम गरीब है, माड़े हैं, क्या करें? इंसान का अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन्हों को क्या परवाह, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे पहले कितने चार्ज करते थे एक दिन? 24 घंटे के 300 हम देते थे, ठीक है, तो लेकिन वो हमें ठीक भी लगता था कि हमें महसूस भी नहीं होता था, इसलिए कि दिहाड़ी में 2 फेरे लगा ले, 3 लगा ले, हमें पता है कि यार हमें रोजी कमा लेनी। और किसी टाइम ऐसा होता था कि पर्ची हमारी वो कभी कभी नहीं भी लेते, ठीक है, लेकिन इन्होंने मोटरसाइकिल बाहर जाना है, ठीक है, तब भी पर्ची, हर चीज की तो पर्ची है, तो कितना को इंसान जुल्म बर्दाश्त करे? ये जो बात कर रहे हैं कि हर चक्कर के आप पैसे चार्ज करें, ये सही कर रहे हैं बात? जी सही है। तो पहले तो 24 घंटे के एक पर्ची की आप लेते थे चार्ज? और हमें नहीं पता, हमें आज इसके बात का पता कि हमने ठेका लिया 80 करोड़ 1 लाख रुपए का, उसके हिसाब से हम ले रहे हैं पर्ची। आप जो पर्ची ले रही है ये फ्री है, अब इसमें ले जानी है, इधर पर्ची हम ले रहे हैं वापसी। तो वापसी के भी तो पैसे चार्ज करते हैं ना? फ्री है वापसी, 300 वाली ये गाड़ी की पर्ची है, और जो ये पर्ची इसके पास है ना, ये सर पराली डलवाते हैं यहाँ से, उस पराली की चार्ज है। जो एंट्री और एग्जिट के चार्ज कर रहे हैं उस पे बात है, वो एंट्री के सिर्फ 300 है, वो एग्जिट के पैसे नहीं है? नहीं है। 1200 रुपया किस चीज के? बकरों की है एंट्री की, जितने बकरे होंगे उतने पैसे? हाँ जी।
पर बकरा कितने पैसे ले रहे 100 रुपए, हैं? तो गाड़ी के अलग चार्जेस है, 300 रुपए लेता है। अगर वापस आते हैं तो फिर वापस पर्ची दिखाओ तो फिर गाड़ी के कोई बकरों के पता नहीं वापसी का क्या, हम तो लेकर आए हैं। आते हुए जानवरों के पैसे भी हैं और जाते हुए भी जानवरों जब जब एंटर होना है इधर मंडी में 100 रुपया छोटा जानवर है, 500 रुपया बड़ा जानवर है, उसकी फीस है। हाँ जी। और गाड़ी के भी चार्जेस है। गाड़ी के ज्यादा चार्जेस है, 300 रुपया गाड़ी का है और उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, जब वापस जाए आप वहाँ से आप 2 जानवर लेते हैं, 3 जानवर लेते हैं, पैदल चले जाएं कोई पैसे नहीं है, 10 जानवर लेके पैदल चले जाएं कोई पैसे नहीं है। अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो उसके चार्जेस। गाड़ी के उसके पराली के पैसे होते हैं जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने जानी कि किस तरह मवेशी मंडी में आने वाले शहरियों को जानवर की खरीदारी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ अतीक मलिक को इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।